Hello guys, I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. So I welcome you back in the pre-RMO series जिसके अंदर हम previous year pre-RMO questions कर रहे हैं. So guys, right now we are going through pre-RMO 2017 and in this video we are going to do the 13th question of pre-RMO 2017. Okay, so let us see this question without wasting any time. Okay, देखते हैं इस question को. So just a second guys. Okay, all right. Here it is guys. So guys, it is given that in a rectangle, देखो, in a rectangle ABCD, E is the midpoint of AB. So guys, ऐसे में हम क्या करते हैं, डायग्राम साथ साथ में बनाते जाएंगे. Okay, let us draw this the diagram alongside. So एक rectangle है ABCD, नेमिंग कर देते हैं हम इसकी A, B, C and D. Okay, now E is the midpoint of AB. Okay, E यहाँ पे है, इसका midpoint है. Sorry guys, just a second. Okay. So E is the midpoint, तो mark कर देते हैं. Okay, now F is a point on AC such that BF is perpendicular to AC. Okay, तो पहले A और C को join कर देते हैं. Okay, now it is given that BF is perpendicular to AC. So let us drop a perpendicular from B upon AC. Okay guys, तो ये 90 डिग्री पे है. So this point is F as given to us. तो ये point क्या है? F है. BF is perpendicular to AC. Okay, and FE. Okay, FE को भी join करना पड़ेगा. Okay, we join it. Okay, just a second. Okay, so we have joined FE is perpendicular to BD. Okay, so let us join BD as well. Alright, so guys हमें ये बोला हुआ है इसमें कि ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री है, right? That BF is perpendicular to sorry not BF, sorry FE is perpendicular to BD. So that is given to us है ना, क्योंकि FE is perpendicular to BD ये दिया हुआ है. And finally guys we know BC length, that is 8 root 3 cent units, what, right? And we need to find the length of AB. So guys that's हमें देखना पड़ेगा कि that if we know this angle, let us name this angle as theta. Okay, angle CAB जिसको मैं theta नाम दे रहा हूँ. अगर ये एंगल हमें पता लग जाए, so we should be able to find the length of AB, right? By applying trigonometry you can say. Simply ढूंढ सकते हैं. Now this question is very easy guys. अगर आप ध्यान से इसको करोगे ना एंगल चेजिंग के मेथड से, different ways of doing angle chasing, different angles ढूंढने की कोशिश करते हैं and it will be done in very quick way. Okay, so guys since हमें क्या पता है, देखो this length is equal to this length and since this angle is 90 guys, AFB is 90, right? Angle AFB is equal to 90. So guys सोच के देखो, अगर मैं AB को डायमीटर मान के सर्कल बनाऊंगा तो ABF is a you can say our concyclic triangle. ABF जो सर्कल बनेगा उसका AB क्या होगा, डायमीटर होगा, राइट? और वी नो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप राइट एंगल से मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो हाइपोटेन्यूज के, देन थ्री लेंथ्स आर इक्वल, राइट? आई show you these three lengths are going to be equal. Okay, I'll name them. So बच्चों, due to that property AE is equal to EB, ये तो हमें दिया ही हुआ है, and that is further equal to FE, right? कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, okay, let me show you that if you have a right angle triangle and you draw median of the right angle, right, then these three lengths are equal and its proof is quite easy that if you अगर आप ड्रॉ करते हो डायमीटर को, सॉरी हाइपोटेन्यूज को, अगर आप डायमीटर समझ के सर्कल ड्रॉ करते हो, देन ऑफ कोर्स द राइट एंगल इज गोइंग टू लाई ऑन इट. सेमी सर्कल के ऊपर 90 डिग्री बनता है, राइट? तो अगर हाइपोटेन्यूज को अगर आप डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करोगे, the right angle point will lie on the circle. So due to that, and midpoint is the center of that circle, so that's why the three lengths are the radius. Okay, the three lengths are basically the radii in that case. So you should be knowing this property. Okay, although मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, you should be knowing this property. Okay, so under that property guys, since AE is equal to EF, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ angle AFE is equal to angle EAF, और जिसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, थीटा. सो अकॉर्डिंगली इन द डायग्राम गाइज आई विल मार्क हियर, तो ये एंगल भी क्या होगा, जो रेड से मार्क कर रहा हूं, ये एंगल भी क्या है, थीटा होगा, राइट? सो दीज टू एंगल्स आर थीटा ईच. ओके,
नाउ गाइस वन मोर प्रॉपर्टी, अगर AC लाइन AC अगर AB के साथ एंगल थीटा बनाती है, सो दिस ऑल्सो मेक्स एन एंगल थीटा, राइट, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है ना, तो डायगोनल्स मेक इक्वल एंगल्स, सेम एंगल्स विद द साइड्स। तो ये अगर एंगल थीटा है, एंगल FAB, देन एंगल DBA इज ऑल्सो थीटा। ओके, एंड वी आर गिवन कि ये एंगल 90 है, राइट, दिस एंगल इज 90। मैं इसको नाम दे देते हैं गाइज एक, ओके, लेट मी सी देयर, लेट मी नेम दिस, लेट से दिस पॉइंट इज पॉइंट M, राइट, जहाँ पे FE और BD इंटरसेक्ट करते हैं, लेट से दैट पॉइंट इज M, एंड वी नो दैट एंगल EMB गिवन है हमें, एंगल EMB इज 90, ये भी हमें दिया हुआ है। नाउ गाइस इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू डू, बहुत इजी है। FEB की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज एंगल FEB, राइट? इफ यू लुक इट इनटू इन केस ऑफ टू ट्राइंगल, देखो अगर तो हम ट्राइंगल EBM के थ्रू ही देखते हैं, इन द ट्राइंगल EMB वन एंगल इज 90, द अदर इज थीटा, तो ये वाला एंगल क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट, एंगल FEB। अगर FEB या MEB की बात करें, नाम दे, चलो MEB कर देते हैं, एक ही बात है वो तो। सो बच्चों गाइस एंगल MEB जो बना हुआ है that is equal to 90 minus theta, right? In the triangle MEB one angle is 90, the other one is theta, so the remaining angle is 90 minus theta. But if you look at the triangle AFE, in triangle AFE अगर आप देखोगे बच्चों, इन ट्राइंगल AFE उसके लिए तो वो एंगल एक्सटीरियर एंगल है, राइट, जो एंगल MEB है, द एंगल, उसको नाम FEB भी दे सकते हो, MEB भी दे सकते हैं, राइट। ओके, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, ओके, सो एंगल MEB अकॉर्डिंग टू दैट शुड बी 2 थीटा, राइट, इन दोनों एंगल्स का सम होना चाहिए। सो दैट्स इट गाइज, आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सॉल्व बहुत इजीली, आप देख सकते हो। सो बेसिकली एंगल MEB को हमने टू डिफरेंट वेज में लिख दिया है, सो अकॉर्डिंगली दीज टू शुड बी इक्वल, सो 90 डिग्री माइनस थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 थीटा, एंड दैट गिव्स यू 3 थीटा इक्वल टू 90। और बच्चों आप यहाँ पे आपको क्या मिल गया? थीटा इज गोइंग टू बी 30 डिग्री, राइट, सो यू फाउंड द एंगल, 30 डिग्री आ गया आपके पास। नाउ वेरी इजीली यू कैन फाइंड AB by applying Pythagoras theorem, or you can apply tan 30, right? So what is tan 30? Okay, यहाँ पे solve कर देते हैं। So accordingly tan 30 in triangle ABC, in triangle ABC if you apply tan 30, it is going to be equal to BC upon AB, right, and that is 8 root 3 over AB, and we know बच्चों ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1 by root 3 के, right, that is going to be equal to 1 by root 3 tan 30. So that's it बच्चों, AB की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 root 3 into 3 root 3, that is 8 into 3, the answer should be 24 units, right? So very simple, right? वो तो मैंने आपको explain किया तो मे बी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, but otherwise if you see it you can easily like you know almost solve it on the diagram itself. ओके, तो बस आपको यहाँ पे यही देखना था, व्हाट यू नीडेड टू नोटिस वाज इम्पोर्टेंटली कि इसमें ये चीज एक यू कैन से पिवट पॉइंट है या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि AE इज इक्वल टू EB एंड इज इक्वल टू FE, ये वाला पॉइंट अगर आप यूज करते हो अकॉर्डिंगली देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, दैट इज द टर्निंग पॉइंट बेसिकली फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? सो दैट्स इट गाइज, तो इसका फाइनल आंसर आई विल राइट हियर आल्सो, ओके, सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 24, राइट? सो इट्स एन इजी वन, ओके, आई होप सबको बच्चों समझ में आया, एंड यू शुड बी नोइंग दिस बेसिक थ्योरम्स एक्चुअली, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो मैथ्स ओलंपियाड के लिए, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, आई होप everything was clear, and if there is any doubt you can post it in comments, okay? Thank you everyone so for watching the video, I hope आपको समझ में आया अच्छे से, so we'll see you in the next video with the next question, okay? Till then keep working and all the best, thank you.